आज हम लोग मॉड्यूल 2 का लेसन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स। rencontrer टू मीट, love you means street, the means says, aujourd'hui means today, alors so or then, le bal dance party, malade it's sick, si drôle so funny, pourquoi why, fâché angry, lui to him to her, leur to them. This is pronoun. We will study them like COI and COD later on. There, here, one thing is to be noted, like when we say leur livre, here the word leur is adjective, so it means their book. But je leur parle, यहाँ पर लर का मतलब आई स्पीक टू देम, ये प्रोनाउन COI, इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसके आगे देखते हैं। ग्रा मीन्स बिग, टू जूस इज ऑलवेज, regretter टू regret, étudier टू स्टडी, parce que because, écouter listen, chez at the house of at the place of, au revoir गुड बाय। अब हम लोग ग्रामर टॉपिक देखने वाले हैं। ये ग्रामर टॉपिक है क्षितुकोश, सब्जेक्ट प्लस आले इन प्रेजेंट टेंस प्लस वर्ब। इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ही जा रहे हैं प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब। इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल है लाइक वर्ब मांझे ले लें, जिसका मतलब टू ईट होता है। तो जब ए मांझे, इंग्लिश ट्रांसलेशन आई एम गोइंग टू ईट, क्यूबा मांझे यू आर गोइंग टू ईट, इल्वा मांझे ही इज गोइंग टू ईट, नूजालो मांझे वी आर गोइंग टू ईट, भूजाले मांझे यू आर गोइंग टू ईट, एल्बो मांझे दे आर गोइंग टू ईट। इसको ऑर्डर में आपको लिख लेना है, जो बे मांझे, इसके सामने आपको नूजालो मांझे कर देना है। ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है, बट बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन करना। तो यहाँ पर एक पैसेज है जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो Marguerite rencontre Paul dans la rue. Margaret meets Paul in the street. Bonjour Paul. Good morning Paul. Il lui dit. He says, here, Marguerite is girl, Paul is boy. Here who is saying, here Louis is representing Margaret. He says to her, Bonjour Margaret. Elle lui dit. She says to him, votre sœur n'est pas à l'école aujourd'hui. Your sister is not in the school today. Est-elle malade? Is she sick? Il lui dit. He says to her, oui, elle ne va pas très bien. She is not feeling very well. Est-ce que vous allez au bal ce soir, Paul? Paul, are you going to dance party this evening? No, Marguerite, je ne vais pas au bal. I'm not going to the dance party. Alors, allez-vous étudier? So, you are going to study? No, je ne vais pas étudier. I'm not going to study. Est-ce que vous allez au cinéma? Are you going to cinema? No, je ne vais pas au cinéma. I'm not going to cinema. Oh, Paul, vous êtes si drôle. Oh, Paul, you are very funny. Pourquoi êtes-vous fâché? Why are you angry? Je ne suis pas fâché, Marguerite. I'm not angry, Margaret. Écoutez, Paul, je vais ce soir chez Mademoiselle Potine. I'm going to the house of Mademoiselle Miss Potine this evening. Elle va parler des monuments de Paris et à ses étudiants. She is going to speak about the monuments of Paris to her students. Elle va leur montrer le Louvre et Notre-Dame de Paris. She is going to show them the Louvre. Louvre, I think you know, ये म्यूजियम है, and ये चर्च है नोत्र-दाम de Paris. Elle va leur rencontrer. ध्यान देना, दो वर्ब हैं, एक rencontrer टू मीट और एक है raconter टू डिस्क्राइब, टू टेल द स्टोरी। यहाँ पर raconter है। Elle va leur raconter l'histoire des grands monuments de Paris.
She is going to tell them the story of big monuments of Paris. Les leçons de Mademoiselle Potin sont toujours très intéressantes. The lessons of Miss Potin are always very interesting. Elle parle français et nous lui parlons français. She speaks French and we speak to French with her. Here Louis is CY. Paul Louis dit. Paul says to her, alors, vous n'allez pas au bal ce soir, so you are not going to dance party this evening. Elle lui dit, she says to him, no, Paul, je regrette beaucoup. I'm sorry a lot. Au revoir, Paul. Bye, Paul. अब इसके बाद कंसेप्ट ऑफ नेगेशन हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा हुआ है इससे रिलेटेड। इसको थोड़ा सा हम ऊपर ऊपर मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके साथ। यहां तक हमारा हो गया है। अब देखते हैं नेगेशन। तो नेगेशन में आपको पता होगा कि नेगेशन में न पहले लगाते हैं, इसके बाद वर्ब लिखते हैं, फिर पा लिख देते हैं। जैसे ज regarde la paysage, पेजाज सीनरी। ज न regarde पा, यहाँ वर्ब regarde है, उसके पहले न लगाया हुआ है और ये पा। regarde का ये कंजुगेशन है। il adore la music, यहाँ वर्ब adore है तो उसमें न पा इसके आगे पीछे लगा दिया हुआ है। इसके बाद यदि हम सेंटेंस में पाते हैं ड्यू दला लगा हो, पार्टिसिपल आर्टिकल लगे हो, तो उस केस में उनको द में चेंज कर देंगे। लेकिन ये चेंज तब नहीं करेंगे जब एत्र वर्ब होगी। जैसे ये वाला एग्जांपल से ड्यू पा, यहाँ पर ये ईएसटी लिखा हुआ, ये एत्र का फॉर्म है, तो इसलिए ड्यू पा विल रिमेन ड्यू पा। लेकिन इन केस में देखें ज मांझ ड्यू पा, यहाँ पर ड्यू को द करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं इसको नेगेटिव करने के लिए यहाँ सेंटेंस है मो लिब्रे ए अतरेसा। इसमें कुछ नहीं करना है, पहले वर्ब ढूंढ लें, वर्ब के पहले एन ई या एन अपोस्ट्रोफी, यदि वर्ब वावल से बिगिन करे उसके बाद पा लगा देना, तो यहाँ पर हो जाएगा मो लिब्रे एन अपोस्ट्रोफी ईएसटीएन पा। यहाँ पर वर्ब है सो, एत्र का फॉर्म है तो यहाँ न और पा लगाएंगे। यहाँ पर वर्ब मांझे है तो न यहाँ पा यहाँ, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर ये डी यू चेंज होकर के डी बन जाएगा। देन अगले वाले सेंटेंस में देखें ये वर्ब अशेत लिखा हो, मसूद अशेत देखो, तो इसको इसके पीछे एन अपोस्ट्रोफी, इसके बाद पा, और ये डीईएस को डी में चेंज करना पड़ेगा। इल एम लर्सिया, यहाँ पर वर्ब एम है तो यहाँ पर एन अपोस्ट्रोफी और यहाँ पा लगा देंगे। यहाँ पर वर्ब अशेत है, इसके पहले एन अपोस्ट्रोफी और यहाँ पा, लेकिन ध्यान रखना इस डीईएस को डी में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। यहाँ पर वर्ब अबवार है तो ज और उसके बाद एन अपोस्ट्रोफी और देन ए आई और इसके बाद पा लगा देंगे और फिर कॉपी कर देंगे। इल मांझ ड्यू बस, यहाँ पर भी ड्यू को डी में करना पड़ेगा। वर्ब मांझे है, इसका कंजुगेशन यहाँ पर लिखा हुआ है तो एन एन ई और इसके बाद पा। यहाँ पर एत्र वर्ब है तो ये यूएनई डी में चेंज नहीं होगा और हो जाएगा एस सी लिखेंगे, एन अपोस्ट्रोफी और देन ई एस टी और उसके बाद पा, और ये यूएनई है स न सो देगा सो। यहाँ पर भी डीएस को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एत्र है। स न सो पा, स न देन सो और इसके बाद पा, इसके बाद देगा सो गए। अब अगला जो चीज दी हुई है वो है फ्यूचर प्रोस्ट में करना। फ्यूचर प्रोस्ट में करने के लिए यहाँ पर जो पहली वाली वर्ब गिवन है ना, उसकी जगह पर आले लिख दो और उसके बाद इस वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म लिख दो। तो यहाँ पर हो जाएगा मोलिब्र वा और वर्ब ये है एत्र, तो मोलिब्र वा एत्र अतरेसा। यहाँ पर वर्ब रिगार्ड लिखा हुआ है, इसका ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगा। और यहाँ पर ज वे वी ए आई एस एंड देन रिगार्डे आर ई जी ए आर डी ई आर हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब मांझे है तो यहाँ पर लगासू वा और एम ए एन जी ई आर। यहाँ पर वर्ब लीर है एल आई आर ई, तो यहाँ पर हम कर देंगे मस्यो व्यूपा वा एंड लीर एल आई आर ई। देन इल एम लर्शिया, वर्ब ए में है तो यहाँ पर इल वो वी ओ एन टी, देन इस वर्ब को ओरिजिनल फॉर्म में कर देंगे ए आई एम ए आर। फिर है इल अशेत, यहाँ पर वर्ब अश्ते है तो यहाँ पर पहले इल वो लिखेंगे फिर अश्ते करते हैं। यहाँ पर वर्ब फेयर है तो ज वे फेयर हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब राजे है तो इल वा देन राजे। यहाँ पर एकुते है तो ट्यूबा एकुते कर देंगे ई सी ओ यू टी ई आर। यहाँ पर एखरीर है ई सी आर आई आर ई तो इल वो
एक खरीद लेते हो जाएगा। तो इस ढंग से यहां तक आपको क्लियर किया। अब हम कंसेप्ट देखने जा रहे हैं कि लुइलर कब लगाते हैं। तो आ के साथ यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे मान लो गार्सो लिखा हुआ है, इसके गार्सो आर्टिकल के साथ आएगा तो ये लुई बन जाएगा। ये गार्सो है तो ये लुई बन जाएगा। इवन ये फेमिनिन हो आ, और उसके बाद यहाँ आर्टिकल के साथ ही आएगा तो एयू बन जाए, लिखा होगा ओ गार्सो। ऐसे ही अला फी लिखा हुआ है। तो यहाँ आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो फी है सिंगुलर लिखा हुआ है, आ लगा हुआ है, ये लुई बन जाएगा। तो ये मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए वैलिड है। और आ के साथ प्लूरल लिखा हो, आप प्लूरल पर जस्ट लाइक हमारे पास हो जाए ओ गार्सो लिख दें, ए यू एक्स, और इसके बाद गार्सो को प्लूरल कर दें, तभी भी तब ये उसके इसमें लर बन जाएगा। तो यानी प्लूरल होना चाहिए। दो लोगों के नाम लिखे हों, आपोल लिखा हो और ए आ जा, ये दो दो लोग हो गए, तभी भी ये लर बन जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। अब हम इसमें से कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे ये बात हमें पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो इसको करने के लिए हम थोड़ा सा इस स्क्रीन को ऊपर मूव करने की कोशिश करते हैं ताकि ये बात क्लियर रहे। तो ये एक्सरसाइज है यहाँ पर, इसको देखते हैं। ये काफी सिंपल है। ये प्लूरल लिखा हुआ है तो ये लर बन जाएगा, लेकिन पोजीशन आपको याद रखना है, वर्ब के पहले लगाना होता है ज लर पार। क्यूदोन ले लिब्र ओ गार्सो, ये सिंगुलर है तो लुई बनेगा, लेकिन यहाँ पर वर्ब के जस्ट पहले लगाएंगे ट्यू लुई दोन ले लिब्र। यहाँ पर वर्ब दोन, फिर से यहाँ पर वर्ब है, ये प्लूरल है तो ये लर बनेगा, ये इसके पहले आ जाएगा की लर दोन युगलसो। यहाँ पर वर्ब बिगिनिंग में लिखी हुई है, लेकिन ये आ तो प्रेयर लिखा हुआ है, सिंगुलर है तो लुई लगाएंगे, लेकिन बिल्कुल बिगिनिंग में लगाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर वर्ब दोनों है और ये प्लूरल लिखा हुआ है, आसुसान एक एल एफ। यहाँ पर आ एल एफ की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, यहाँ पर ए यू एक्स होना चाहिए वो। ठीक है, आप कर देना, ए यू एक्स है, ओ जेल एफ है। ठीक है। तो ये भी लर बन जाएगा, लेकिन वर्ब यहाँ पर वर्ब के बैक पे लगाया जाएगा। और यहाँ पर वर्ब पार्ल है, ये सिंगुलर है तो यहाँ पर इसके पहले लुई आ जाएगा। यहाँ वर्ब मोंतरे है, इल मोंत्र। ठीक है, ये कंजुगेटेड फॉर्म उसका। और ये जो सामने लिखा हुआ जिसको रिप्लेस करना है, ये प्लूरल है तो ये लर बन जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर ये लुई है बन जाएगा, सिंगुलर है यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखें, ये सिंगुलर है तो ये भी यहाँ पर पहले लुई बन जाएगा। यहाँ पर आ में जाफा, ये प्लूरल है तो ये लर बन जाएगा वर्ब के पहले। इसके बाद ट्रांसलेशन आता है। I meet my friend Alice in the street. Je rencontre mon ami Alice dans la rue. I say to her, je lui dis, I am not going to the movies this evening. Je ne vais pas au cinéma ce soir. She says, elle dit, why? Pourquoi? Are you ill? Êtes-vous malade? I say to her, je lui dis, no, I'm not ill. Je ne suis pas malade, but I don't like the movie. Mais je n'aime pas les films. Is your brother going to the dance? Est-ce que votre frère va au bal? No, he is not going to the dance this evening. No, il ne va pas au bal ce soir. His teacher is giving him a lesson. Son professeur lui donne une leçon. She speaks French to him. Elle lui parle français. He speaks to French her also. Il lui parle français aussi. She shows the monuments of Paris to the students. Elle montre les monuments, या फिर यहाँ पर देख लिखें, elle montre des monuments de Paris aux étudiants. They are not intelligent. Elles ne sont pas intelligents. ध्यान रखना है, IELTS आप लिख रहे हैं तो इंटेलिजेंट की स्पेलिंग में एस लगाना पड़ेगा। She gives them a large book. Elle leur donne un grand livre. They do not like her book. Ils ne aiment pas. कैसे लिखेंगे? IELS और N apostrophe and then AIMENT. N'aime pas
और हर बुक इज सो लिब्रे, दे डोंट हैव देयर बुक्स। फिर इस पे एल लगा करके, एल नूपा, ILS and then N apostrophe ONT, Lupa, Lur Libre, LURS and then Libre. Miss Putin's lessons are not interesting. Les leçons de Mademoiselle Pota न सोपा इंटरेस्टेंट। ध्यान रखना है, लेसन फेमिनिन प्लूरल है, तो ये जो इंटरेस्टिंग की स्पेलिंग होगी तो INTERESSANTES हो जाएगी। इसको भी फेमिनिन प्लूरल आपको बनाना पड़ेगा। तो बात यहां तक समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक सेंटेंस था, ये मॉन्यूमेंट्स वाला जो, तो यहाँ पर द लगा हुआ है तो इसमें एलियस ही लगाना है, दे लगाना ठीक नहीं होगा। शी शोज द मॉन्यूमेंट्स ऑफ पेरिस टू हर स्टूडेंट्स, एल montre ले मॉन्यूमेंट द पारी आ यहाँ पर ध्यान देना, टू द, तो यहाँ पर के बाद एलियस लगाना है, एलियस प्लस एथ्यूडियम आएगा तो फिर बन जाएगा ये ओज एथ्यूडियम, ओज एथ्यूडियम। तो ये बात यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।